पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा। ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिया और ये बड़ा स्टेप है। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। ये तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल, वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल। আমরা সংসদে জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবি উত্থাপন করেছিলাম। হঠাৎ ক্ষমতায় আসার 11 বছর পরে জাতিভিত্তিক জনগণনা ঘোষণা করল সরকার। সরকারকে চাপ দেওয়ার কংগ্রেস দলের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। জাতিভিত্তিক জনগণনার সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। জাতিভিত্তিক জনগণনার কাজে সরকারকে সহায়তা করার আশ্বাস রাহুল গান্ধীর। জনগণনা কবে থেকে শুরু হবে তারিখ নির্ধারণ করতে হবে দাবি রাহুল গান্ধীর। জাতি গণনা নারী সংরক্ষণ বিল 2023-এর মতো হওয়া উচিত নয় বললেন রাহুল গান্ধী। বুধবার সকাল থেকে মন্ত্রিসভার একাধিক কমিটির বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে। এরপর বিকেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জাতিভিত্তিক জনগণনা অন্তর্ভুক্তের কথা ঘোষণা করেছেন। আর মোদী সরকারের এই জাতিভিত্তিক জনগণনা ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সেই সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী বলেন, আমরা সংসদে জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবি বারবার তুলে আসছি। নরেন্দ্র মোদী বলতেন শুধু 4টি জাত রয়েছে। হঠাৎ ক্ষমতায় আসার 11 বছর পরে জাতিভিত্তিক জনগণনার ঘোষণা করেই ফেললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে আমরা এই জাতিভিত্তিক জনগণনার সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি, কিন্তু আমরা টাইমলাইন চাই, আমরা জানতে চাই এটা কবে হবে। এই প্রসঙ্গে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস সরকার যে সমীক্ষা চালিয়েছে সেই বিষয়টি উত্থাপন করেন রায়বরেলির সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, জাতিভিত্তিক জনগণনার একটি মডেল হতে পারে তেলেঙ্গানা। এই গণনা কিভাবে করা যেতে পারে তার ব্লুপ্রিন্টও মিলতে পারে ওখান থেকে। রাহুল গান্ধী কেন্দ্র সরকারকে প্রস্তাব দেন, জাতিভিত্তিক জনগণনার ডিজাইন আমরাই করে দিতে পারি, কারণ এই ডিজাইনটা খুব জরুরি। বিহার ও তেলেঙ্গানা দুটি রাজ্যের ডিজাইনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। রাহুল গান্ধীর বক্তব্য যে শুধু সংরক্ষণ নয়, আমাদের প্রধান প্রশ্ন দেশের দলিত এবং ওবিসিদের কতটা ভাগ রয়েছে সেটা জানা। জাতিভিত্তিক জনগণনায় সেটা এক প্রকার জানা যাবে, কিন্তু এই গণনাকে ছাপিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা সংবিধানের 15 নম্বরের 5 নম্বর ধারার কথাও বলেছিলাম, যেখানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আইন। আমরা চাই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই আইনটি অবিলম্বে কার্যকর করা শুরু করুক। দেশবাসী যখন পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পাল্টা জবাবের আশা করছে, ঠিক সেই সময় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক রাহুল গান্ধীকে প্রশ্ন করেন যে নরেন্দ্র মোদী সরকার কি পহেলগাঁওয়ের ঘটনা থেকে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে দিতে এই ঘোষণা করেছেন। এর উত্তরে অবশ্য কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা পরিষ্কার করে বলেন যে জল্পনা করা আমার কাজ নয়, আমি তথ্য নিয়ে কাজ করি। প্রধানমন্ত্রী কেন এই সময়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তা জানতে আমি আগ্রহী নই। সেই সাথে বিহার নির্বাচনের পূর্বে কেন্দ্র সরকারের এটা কোনো রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরেও রাহুল গান্ধী বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বলেছেন যে 2023-এ আনা যে নারী সংরক্ষণ বিলের মতো যাতে এই জাতিভিত্তিক জনগণনার ঘোষণাও পড়ে না থাকে এবং এটা যাতে খুব দ্রুত কার্যকর হয় সেই দাবি জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। पार्लियामेंट में हमने कहा था
कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they have taken it. Now this needs to be taken forward. ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा,
है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जहां जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं, अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये दो स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे। अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है, आपका काम स्पेक्यूलेशन है, मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया, और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। इस तरीके से होना नहीं, देखिए, तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल, तेलंगाना में वी हैव सेट अप ए एक्सपर्ट ग्रुप who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15(5), Article 15(5) जो मैंने मेंशन किया है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटेजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।